first of our lecture goes as reaction of alcohols involving breaking of this OH bond. And remember this thing, whenever the alcohols will act as acids or nucleophiles, it has been experimentally found that their OH bond breaks. अब हम इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे. पहले हम देखेंगे कि alcohols acting as an acid. So I will say that reactions involving breaking of OH bond in case of alcohols and phenols. Let's try to understand the first part of it. First we will focus on the alcohols, then on the phenols. ठीक है? So then the different important discussions. अगर मान लीजिए आपके पास अल्कोहल है, आपने इस अल्कोहल को ट्रीट किया सोडियम के साथ, मुझे बताइए क्या हो जाएगा? What will happen in this case? सोडियम के साथ ट्रीट करने में क्या हो जाएगा? देखिए, जिन मॉलिक्यूल्स के पास OH ग्रुप रहता है उनका कैरेक्टर जो होता है वो बोथ होता है, एम्फोटेरिक एज वेल एज एसिडिक. लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे, अगर आप सोडियम के साथ रिएक्ट अल्कोहल्स को कराओगे तो आपको पता चलेगा कि देयर बी द लिबरेशन ऑफ व्हाट वी से एज एन हाइड्रोजन. सोडियम अल्कोक्साइड विल बी फॉर्म्ड. This will be having a negative charge, plus there will be H2 that will be released. So hydrogen gas will be liberated. अब हम ये स्टेटमेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बोलते हैं कि मेटल्स जो है they decompose acids with the liberation of H2 gas. So this indicates that alcohols are acidic in nature, and because of that the OH bond breaks. So what happens is there is an electron transfer. If you have this here, it's zero charge. If you have here, it's +1 charge. If you have here, it's 0 charge. So it's simply a type of the electron transfer from sodium to hydrogen, indicating that the hydrogen has more ability to accept electrons, and with the result hydrogen gas is liberated out. Now the rate of liberation of hydrogen gas is directly measured by the acidic character. But what will happen in this case is that alcohols are actually acting as an amphoteric substances. They can act as acids, they can act as bases. But अगर इन्होंने यहां पे OH bond तोड़ के H positive को रिलीज किया, तो that means they are Brunster acids. And if they act as Brunster acids, what is the acidic character? How and when it can be modified by the different substituents? Let's try to understand this. अगर हम ऐसा करते हैं कि मेरे पास let us suppose ये है, अब अगर हम इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे या ये आयोनाइज होके ऐसा भी ये आयोनाइज हो सकता है और इसके बाद ये बन सकता है CH3 CH2 O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. तो H पॉजिटिव के केस में जब ये रिलीज हो गया तो OH बॉन्ड ब्रेक हो गया. अब हमारे पास अल्कोक्साइड आयन, अल्कोक्साइड आयन अगर हमारे पास है तो इट्स इन इक्विलिब्रियम विद H पॉजिटिव. लेकिन अल्कोक्साइड आयन जो है इट एक्ट्स एज अ कंजुगेट बेस. कंजुगेट बेस यहां से एक्सेप्ट H पॉजिटिव कर सकता है. तो इसका मतलब यह है कि यहां पे अगर आप इसका देखोगे, इसका प्लस आई इफेक्ट है. प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा. डोनेशन होने की वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो इंटेंसिफिकेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा, और अगर इंटेंसिफिकेशन ऑफ चार्ज होता है तो उसकी वजह से देयर विल बी मोर एक्सेप्टेंस फॉर H पॉजिटिव. समझ आ रही है बात? तो एक्चुअली ये अनस्टेबल बनेगा. अनस्टेबल बनने की वजह से ये H पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा एंड द इक्विलिब्रियम विल बी टेकन इन द रिवर्स डायरेक्शन. ना जितना जितना ये ज्यादा अनस्टेबल बनेगा उतना H पॉजिटिव के साथ ज्यादा कंबाइन करेगा. जितना ये ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना H पॉजिटिव ज्यादा लिबरेट करेगा.
तो इसका मतलब यह है कि इनका जो एसिडिक कैरेक्टर है, द रिलीज टेंडेंसी ऑफ रिलीजिंग H पॉजिटिव, दैट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस. If the conjugate base is more stable, it's going to release more H positive. If it's less stable, it will be combining with H positive and resulting in the formation of undissociated. And if the undissociated dominates than the dissociated one, then we say it's actually weakest. It's actually a weakest. So alcohols are acting as acids where there is a breaking of OH bond, releasing H positive with certain substances. But the acidic character can be measured by the rate of liberation of H2 gas. And any factor which will stabilize the conjugate base will increase the acidic character, and any factor which will destabilize the conjugate base will decrease the acidic character. अब हमारे पास अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि मान लीजिए हमारे पास अल्कोक्साइड आयन, ये है अल्कोक्साइड आयन हमारे पास कैरिंग नेगेटिव चार्ज. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको कहीं पे भी अल्कोक्साइड आयन नजर आता है, जैसे मैं आपको इससे पहले बताऊंगा कि अल्कोक्साइड आयन आपको ग्रिग्नोर्स रिएजेंट में मिला था. जब हमारे पास R नेगेटिव ने अटैक किया था कार्बन को और उसके बाद आपको O नेगेटिव आया था, दैट वाज एन अल्कोक्साइड आयन. तो इमीडिएटली उसको क्या हुआ, दैट वाज हाइड्रोलाइज्ड बाय यूजिंग वाटर. अभी आप देखिए, आपने अभी पढ़ा कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से भी अल्कोक्साइड आयन बनता है और उसके बाद इसको हाइड्रोलाइसिस होगी. तो इसी वजह से अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी अल्कोक्साइड आयंस मिलता है तो अल्कोक्साइड आयंस यू आर प्रेडिक्टिंग इट टू बी अ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस. व्हेन इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस इट कैन बी इजीली हाइड्रोलाइज्ड. बिकॉज हाइड्रोलाइज इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए यहां पे सोडियम होगा तो इट्स अ सॉल्ट ऑफ व्हाट, इट्स अ सॉल्ट ऑफ, शाबाश, it's a salt of what is a weak acid, and salts of the weak acids can be easily hydrolyzed because they contain strong conjugate bases. And with the result what's going to happen is, मान लीजिए आपने इसको HOH के साथ यानी वाटर के साथ कंबाइन किया और उसके बाद यहां से H पॉजिटिव ट्रांसफर होता है. इसका मतलब यह है कि वाटर इज मोर एसिडिक एज कंपेयर्ड टू अल्कोक्साइड आयन, एंड हेंस व्हाट यू विल बी गेटिंग इज ROH plus OH negative plus OH negative. So this reaction indicating that water is a stronger acid as compared to alcohols, and hence transferring its H positive from here to here. Is it clear? Now, अगर आप इस रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने तो इसका मतलब यह है कि जहां कहीं पे भी आपको अल्कोक्साइड आयन मिलेगा, इसको आप हाइड्रोलाइज सिंपली वाटर से कर सकते हो और आपको वहां पे अल्कोहल बनेगा, जो कि ग्रिग्नोर्स रिएजेंट और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के केस में मिलता है. अब मुझे बताइए एक चीज, अब अगर हम यहां पे अल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी मेजर करेंगे तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल. अगर हम मान लीजिए CH3 CH2OH हमारे पास ये है और हमारे पास लेट अस सपोज CH3 CH3OH, ठीक है, और हमारे पास लेट अस सपोज ये है CH3 CH3 CH3OH. बात समझ में आई? अब इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा? आप सिंपली बनाएंगे कंजुगेट बेसिस. मान लीजिए मैंने इसका कंजुगेट बेस बनाया, इसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा? अगर मैं इसका कंजुगेट बेस बनाऊंगा तो ये बनेगा ऐसे CH3 CH3 CH3O नेगेटिव, ठीक है. अब अगर आप देखोगे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप का प्लस इफेक्ट ज्यादा है. प्लस इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स विल बी गिवन टू ऑक्सीजन, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स विल बी गिवन टू ऑक्सीजन it will be stabilized or destabilized, it will get destabilized, and hence it will combine more with the H positive, hence undissociated form will be dominating, and when undissociated form dominates it's called as the weak acid. Whereas in this case if you have the release of the H positive, if you make the conjugate base out of this, ठीक है, यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा यानी इंटेंसिफिकेशन नेगेटिव चार्ज कम होगा, इसकी स्टेबिलिटी स्लाइटली इससे ज्यादा होगी और उसकी वजह से डिसोसिएटेड फॉर्म विल डोमिनेट एज कंपेयर टू द अनडिसोसिएटेड, एंड हेंस इट विल बी अ स्लाइटली स्ट्रॉन्गर एसिड. सो वी से द एसिडिक ऑर्डर विल बी, सो इट्स A greater than B greater than C, that will be the acidic order in this case. तो जितना अल्काइल ग्रुप ज्यादा, जितना अल्कोहल्स के केस में अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे उतना एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, कम, उतना बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि ये कैरेक्टर जो है ना इनवर्स है आपस में. अगर किसी का एसिडिक कैरेक्टर कम है उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा. तो इसका मतलब यह है कि अल्कोहल्स कैन एक्ट एज बोथ एम्फोटेरिक सब्सटेंस, दे कैन एक्ट एज एसिड्स, दे कैन एक्ट एज bases depending upon the type of the alkyl group, whether it has lesser group, that group which is having what we say as a plus effect, and if it's having the group which is having more plus effect, depending upon that it can decide the acidic character of alcohols.
एक और चीज याद रखें, अगर मान लीजिए इस और इसका कंपैरिजन होगा, नाउ व्हाट यू कैन इन्फर आउट ऑफ दिस, ठीक है। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, 0। मिथाइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, प्लस आई। प्लस आई की वजह से क्या है, इसका कंजुगेट बेस बनाइए, ये बनेगा CH3O नेगेटिव, ये बनेगा OH नेगेटिव, वही बनेगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट पे अप्लाई कीजिए, इसका मतलब है कि ये अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है, लेकिन नहीं। methanol, I repeat myself, methanol is stronger acid as compared to water. Rest of the alcohols are weaker acids as compared to the water. This is an important point. Methanol is stronger acid as compared to water, while as the rest of the acids are weaker acids as compared to water, but the reason is not clearly known. What's the reason behind this? Is it clear? So let's have the this important aspect. Let's compare the acidic character of what we say as water with the phenol and alcohols. अब अगर हम इनको लेंगे, लेट अस सपोज मेरे पास ये है, एक तो हमारे पास ये है। अब हम फिनॉल को देखते हैं। जरा मुझे बताओ एक चीज, ये हमारे पास फिनॉल है, ये हमारे पास HOH है, ये हमारे पास ROH है, लेकिन R का वैल्यू यहां C2H5 है। दिस इज इक्वल्स टू दिस C2H5 एंड हायर, या तो C2H5 है या उससे हायर। अब मुझे बताइए एक चीज, आपको कौन लगता है कि विच विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड? दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। विच विल बी द स्ट्रॉन्गर एसिड अमंग दीज? सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड ये है। देखिए क्यों, ये देख लीजिए, फिनॉल के केस में कंजुगेशन की वजह से क्या होगा, यहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे ऑक्सीजन की तरफ, तो यहां पे माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करेगा। माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करने की वजह से H पॉजिटिव जल्दी रिलीज हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारे पास A सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, फॉलोड बाय मैंने यहां पे क्या लिखा है, एथेनॉल C2H5, तो इसका मतलब है कि वाटर आएगा। अब मैंने आपको बोला कि water is a stronger acid as compared to alcohols except for what, methanol, except for methanol। रेस्ट जितने भी हैं उनके अल्कोक्साइड आयंस जो होंगे वो प्लस आई इफेक्ट की वजह से अनस्टेबल होंगे एंड दे विल एक्ट एज अ weak acids, but water is a stronger acid as compared to alcohols except for the methanol. The reason is not known, so it's A greater than B greater than C. So this is an order, A greater than B greater than C. Now, if we try to understand the acidic character of phenol, let's have the acidic character of phenol. मुझे बताइए एक चीज, अगर आपके पास फिनॉल है और अगर आप ऐसा करेंगे, ये आपके पास फिनॉल है, इस फिनॉल को आप कंबाइन करेंगे सोडियम के साथ, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? शाबाश, ठीक है। अगर अल्कोहल H पॉजिटिव देंगे तो ये क्यों नहीं देंगे, ये भी तो दे सकता है। तो व्हाट विल बी लिबरेट? हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेट एंड सोडियम अल्कोक्साइड यानी फिनॉक्साइड आयन विल बी फॉर्म्ड। अगर आप इसको कंबाइन करोगे NaOH के साथ, ठीक है, ये रिएक्ट करेगा, तो कौन किसके साथ? ये दिस विल रिएक्ट विद दिस एंड Na विल कम हियर एंड सोडियम अल्कोक्साइड फिनॉक्साइड विल बी फॉर्म्ड, सोडियम फिनॉक्साइड। Here in this case you will have the product like this, negative Na positive plus H2O and plus there will be the phenoxide ion here, negative Na positive, that will be formed. Is it clear? So यहां पे दोनों केसों में OH bond break हो रहा है, समझ आ रही है बात? दोनों केसों में OH bond which indicates that it's an acidic in nature, releasing what, H positive in both the cases, and here it will be the hydrogen that will be liberated, H2 gas will be liberated here, ठीक है। लेकिन अगर आप फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर आपस में अगर आप कंपेयर करोगे तो कैसे हो सकता है, ये देख लीजिए, देख लीजिए, अगर आपके पास फिनॉल है, फिनॉल जो है अगर आप इसको पानी में डालोगे, what will happen is it's a stronger acid, so this will be releasing H positive, going to the water, and it will be producing phenoxide ion, and there will be H3O positive that will be generated, means the solution will be acidic, ठीक है। तो ये इसके साथ रहेगा। अब मुझे बताइए एक चीज, यहां पे 3 लोन पेयर्स, ठीक है,
ये लोन पेयर कंजुगेट करेगा यहां से, तो यहां से डीलोकलाइजेशन होगी। उसके बाद इक्विलिब्रियम रिवर्स डायरेक्शन में भी जाएगा। तो इसका मतलब यह है ये इक्विलिब्रियम जो है ये रिवर्स डायरेक्शन में भी जाएगा, ठीक है। अब यहां पे अगर हम इसको देखेंगे, फिनॉल आयोनाइज होके ये बनाता है, फिनॉक्साइड आयन बनाता है। अब व्हाई दिस हैपेंस, देखिए अगर आप यहां पे देखोगे, अगर आप इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाओगे जो ऑलरेडी आपने बनाए हैं, तो एक तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा, दूसरा कार्बन 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 वाले अनस्टेबल होंगे लेकिन ऑक्सीजन वाला स्टेबल होगा, उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, विच कैन बी एक्सप्लेन बाय द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। व्हाइल एज अगर आप इस केस में देखोगे, इस केस में जो ही कंजुगेशन होगा तो सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा, ठीक है, तो ये अनस्टेबल होगा। तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इनसाइड वाटर व्हाट इट फॉर्म्स इज फिनॉक्साइड आयन, एंड फिनॉक्साइड आयन इज bearing the negative charge on the oxygen, while as the rest of the canonical structures it's bearing negative charge on the carbon. Now if it's a conjugate base, now you tell me one thing, that if conjugate base is having negative charge, अगर इसका एसिडिक कैरेक्टर आपको इंक्रीज करना है, you want to have the more of the एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द फिनॉल, so what you will do is आप सिंपली इसको डालेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। क्यों, मुझे बताओ क्यों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आप इसलिए इसको डालोगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जितना वो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा डिस्पर्स करेंगे, एंड एनी फैक्टर विच विल स्टेबलाइज द कंजुगेट बेस ऑफ एन एसिड विल इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर। इसका मतलब यह है कि हम फिनॉक्साइड आयन का जो फिनॉक्साइड आयन है, जो भी इसको स्टेबलाइज करेगा, जो भी इसके नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करेगा, जितना ज्यादा डिस्पर्शन होगा उतना एसिडिक कैरेक्टर इसका इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, यानी जो ग्रुप -I इफेक्ट दिखाएगा या -R इफेक्ट दिखाएगा, उसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर इज गोइंग टू इंक्रीज, और जो ग्रुप आपको +I दिखाएगा या +R इफेक्ट दिखाएगा, उसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर इज गोइंग टू डिक्रीज। वो बात समझ में आई? तो ऐसे ग्रुप्स जिनको डोनेटिंग एबिलिटी होगा, उसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रेज करेगा, जितना रेज ज्यादा करेगा उतना H पॉजिटिव के साथ ज्यादा कंबाइन करेगा, क्योंकि अनस्टेबल बनेगा, उतना फिनॉल ज्यादा बनेगा, जितना अनडिसोसिएट ज्यादा होता है उतना वीक एसिड होता है, और जितना ये ज्यादा डिसोसिएट करेगा बाय मींस ऑफ -I -R एंड -H इफेक्ट, हियर इट्स +I +R एंड +H इफेक्ट, जितना ये ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी कम, जितना ये ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा। So phenoxide ion is stabilized by electron withdrawing groups, while as it's destabilized by electron donating groups. Any factor which will increase the stability of phenoxide ion will increase the acidic character of the phenol, and any factor which will destabilize the phenoxide ion will decrease the acidic character of the phenol. यहां पे अगर आप देखोगे एक और चीज, मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास फिनॉल है, इसको आपने NaOH के साथ रिएक्ट कराया, तो आपको क्या बनेगा? यू विल गेट द सोडियम फिनॉक्साइड प्लस यू विल गेट वाटर, ठीक है। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा इसके साथ, अगर मैं इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराऊं, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस वाटर। मुझे बताओ किसका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होगा, A और B? ज्यादा फेवर्ड इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में किसका होगा, ये देख लीजिए। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, यानी एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, फिनॉक्साइड आयन का यानी फिनॉल का होगा या एसिटिक एसिड का होगा, ठीक है। उसके लिए आपको सिंपली देखना है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, देख लीजिए ये और इसके बीच में कंपैरिजन कीजिए। मुझे बताओ एक चीज, दोनों में डीलोकलाइजेशन, यहां पे भी डीलोकलाइजेशन है, यहां पे भी डीलोकलाइजेशन, तो समझ आ रही है बात? इन बोथ केस देयर इज डीलोकलाइजेशन। नाउ डीलोकलाइजेशन अगर है, डीलोकलाइजेशन में अगर आप यहां पे देखोगे, अगर एस्टेट आयन डीलोकलाइज करेगा तो इसका मतलब यह है कि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज विल बी ओनली ऑन द आल्सो ऑन द ऑक्सीजन। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे फिनॉक्साइड आयन में,
पहला नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज विल बी ऑन द कार्बन। तो डिस्पर्शन किस केस में ज्यादा होगा? डिस्पर्शन इसके केस में ज्यादा होगा। समझ आ रही है बात? तो इसका मतलब यह है कि इसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल होने का मतलब है ज्यादा H पॉजिटिव रिलीज करेगा। इसका मतलब है इट्स अ स्ट्रॉन्गर एसिड। सो वी से कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स एज कंपेयर टू व्हाट? Phenols, because their conjugate base is more stabilized as compared to resonance, because in both the cases the oxygen जब डीलोकलाइज करेगा तो यू विल गेट इक्वलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। याद है, इक्वलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट इक्वली while as unequal canonical structures have different contributions. The canonical structures, while the negative charge resides on the more electronegative atom, they are more stable as compared to the canonical structures where the negative charge is residing on less electronegative atom. So we can infer that carboxylic acids are stronger acids as compared to phenols, except for the picric acid, which we will be discussing in the coming lectures, while as alcohols are the weaker acids as compared to phenol. ठीक है, and the water is a weaker acid as compared to phenol, while as the water is a stronger acid as compared to alcohol, except in case of what we say as methanol. So now we will be discussing the effect of the substituents on the phenol. If we put the different kinds of the substituents, let's have the what we say as a group which is having plus I, the group which is having minus I, minus R, minus H. What will be the impact? What is the acidic character? And the group which is having plus I, plus H or plus R, उसका क्या असर रहेगा at the different positions like ortho, para and meta positions? Is it clear? Now we will have the comparison of acidic character of phenol with respect to electron withdrawing groups. अगर आप phenol को कंपेयर करोगे with following acids के साथ, यानी मैंने NO2 ग्रुप डाल दिया है ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन पे, और अगर आप इनका कंपैरिजन इसके साथ करोगे तो कौन ज्यादा एसिडिक है? फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा कि ऐसा फिनॉल जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा एट रेस्पेक्टिवली एट ईदर ऑर्थो और मेटा और पैरा? नाउ व्हाट हैज बीन फाउंड इज, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है चाहे वो किसी भी पोजीशन पे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी भी पोजीशन पे होने की वजह से इलेक्ट्रॉन बेंजीन से विड्रॉ करेंगे, यानी ऑक्सीजन पे उसका कंटेंट डिक्रीज हो जाएगा, तो जिससे ज्यादा डिस्पर्शन होगा, और डिस्पर्शन होने की वजह से स्टेबिलिटी विल बी मोर. सो व्हाट वी कैन से इज that if you are placing electron withdrawing group irrespective of the position, those phenolic acids are stronger acids as compared to the phenol itself, because there will be the dispersion of the charge and hence they will be stronger acids as compared to phenol. Now अगर हम देखेंगे तो ये तीनों ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे एज कंपेयर टू फिनॉल, लेकिन अगर हम इनका सेल्फ कंपैरिजन करेंगे, सेल्फ कंपैरिजन करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट मुझे चाहिए और दूसरा रेजोनेंस इफेक्ट चाहिए. उन दो को कंबाइन करके मैं ओवरऑल ऑर्डर प्रेडिक्ट करूंगा. उसके बाद किसी एक एसिड में कहीं कहीं पे एक और इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट. दैट इज मेनली इन केस ऑफ द सबस्टिट्यूएंट्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द ऑर्थो पोजीशंस. तो उसी केस में भी कहां कहां पे ऑर्थो इफेक्ट है वो आपको ध्यान रखना है. उसके बाद यू विल गेट द नेट व्हाट वी से एज एन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ phenols. So what we will be doing is that among the three which will be the stronger acids, for that what I will be using is inductive effect and resonance effect, and then getting the net, and finally I will get the what we say as overall. अब हम ऐसा करते हैं, अब हम इनका एसिडिक कैरेक्टर क्या कंपेयर करेंगे. अब मुझे बताइए एक चीज, पहले बाय यूजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, लेट्स यूज द इंडक्टिव इफेक्ट, फाइंड आउट. देख लीजिए बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट से हम कैसे निकाल सकते हैं. इंडक्टिव इफेक्ट अगर हम यूज करें, मुझे बताओ एक चीज, इसका माइनस आई इफेक्ट है. माइनस आई का मतलब है विड्राइंग है. अगर ये इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेंगे थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स, यह है विड्राइंग. ठीक है. अगर ये इलेक्ट्रॉन NO2 जो है ये विड्राइंग ग्रुप है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रा करेंगे तो सबसे ज्यादा विड्राइंग कहां पे हो जाएगी. सबसे ज्यादा विड्राइंग जब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे भी नेगेटिव. मैं कंजुगेट बेस की बात कर रहा हूं, बिकॉज एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस. अब अगर ये विड्राइंग यहां पे करेगा, अगर ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, माइनस आई इफेक्ट दिखाने का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा माइनस आई किस पोजीशन पे होगा. दैट विल बी ऑन द ऑर्थो पोजीशन, फॉलोड बाय मेटा, फॉलोड बाय पैरा. क्योंकि जितना NO2 ग्रुप दूर जाएगा,
ठीक है, आपको पता है ऑलरेडी, यहां पे विड्रॉइंग ऐसे 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 ऐसे। तो मुझे बोलो, अगर विड्रॉइंग यहां पे ये इस और इसके बीच में अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो वो काफी ज्यादा है। डिस्टेंस होने की वजह से इसका इफेक्ट इस पे नलिफाई करेगा, ठीक है। तो मेनली जो इफेक्ट होगा बाय यूजिंग इंडक्टिव इफेक्ट वो सबसे ज्यादा ऑर्थो पे होगा, फिर मेटा पे, फिर पैरा पे, क्योंकि ये विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स को करेगा और जितना विड्रॉइंग ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ज्यादा होगा, उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, उतना H पॉजिटिव ज्यादा देगा। तो इसका मतलब है कि इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ B इज ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये माइनस आई ग्रुप है। माइनस आई ग्रुप का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर विड्रा करेगा, और अगर ये विड्रा करेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डिक्रीज करेगा। जितना डिक्रीज करेगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा। तो इंडक्टिव इफेक्ट चूंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब है इफेक्ट जो है वो इस ऑर्डर में होना चाहिए कि NO2 ग्रुप्स यहां ऑर्थो पे सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, फॉलोड बाय मेटा, फॉलोड बाय पैरा। सो एज पर द इंडक्टिव इफेक्ट द ऑर्डर शुड हैव बीन लाइक दिस, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। लेकिन अगर आप रेजोनेंस इफेक्ट यूज करोगे, रेजोनेंस इफेक्ट के हिसाब से कहां पे हुआ ये देख लीजिए। रेजोनेंस इफेक्ट अगर हम यूज करेंगे, यानी R इफेक्ट माइनस R इफेक्ट जो है इसका, अगर हम वो यूज करेंगे तो मैं आपको पहले यहां पे दिखाता हूं, देख लीजिए। थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट अगर मैं लेट अस सपोज यहां पे O नेगेटिव यानी फिनॉक्साइड आयन जब बनेगा, N डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये है इसका कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। अब अगर हम इसको देखेंगे तो अगर ये इलेक्ट्रॉन कंजुगेट करेगा, ये जाएगा यहां पे, ये जाएगा यहां पे, फिर ये जाएगा यहां पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो कार्बन पे अभी तक नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो डायरेक्टली अब ऑक्सीजन पे जा रहा है, यानी डिस्पर्सन ज्यादा हो रहा है। एक तो कार्बन पे हो रहा है, दूसरा ऑक्सीजन पे भी हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है, यानी डिस्पर्शन अगर आपका ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। और आप देखिए कार्बन से चार्ज उठ रहा है, वो जा रहा है ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। फिर आप वापस कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स लाएंगे तो बाकी फिनॉल में भी बनेंगे। लेकिन ये एक्स्ट्रा कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो ऑर्थो के केस में, जब नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो के केस में होता है डायरेक्टली इन कंजुगेशन विद व्हाट वी से अ नेगेटिव चार्ज, उसकी वजह से जब डीलोकलाइजेशन ऑक्सीजन पे हो जाती है तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से, अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उसका मतलब ये है कि एसिडिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। सेम विल बी द केस एट द हेयर पैरा। पैरा पे भी वही चीज होगी, ऑर्थो पे भी वही चीज होगी, बिकॉज रेजोनेंस इफेक्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस। वाइल एज अगर मैं मेटा के केस में देखूंगा तो ये हुआ ऑर्थो के केस में। अगर मैं मेटा के केस में देखूंगा, लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो O हमारे पास है, O नेगेटिव, उसके बाद डबल बॉन्ड यहां पे, डबल बॉन्ड यहां पे, उसके बाद N डबल बॉन्ड O, एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। ये यहां कंजुगेट करेगा, ये यहां जाएगा। नेक्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये बनेगा O डबल बॉन्ड, देख लीजिए, नेगेटिव चार्ज। फिर N यहां पे है, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये देख लीजिए। इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज इज नॉट डायरेक्टली कमिंग एट द मेटा पोजीशन, so it's not getting stabilized through the oxygen, it's not getting surface area more for the stabilization। तो इसका मतलब यह है कि ये stabilization जो है, that is negative charge when comes directly in contact with the NO2 group, is only possible at what positions? It's possible at ortho and para, and because of that the phenoxide ion will get stabilized and hence they will be having more acidic character. But the resonance effect does not depend upon the distance, so we can infer that कि हमारे पास जो acidic character resonance की वजह से होगा, that will be ortho equals to para which is greater than meta, क्योंकि meta पे ये इफेक्ट ऑपरेट ही नहीं करता। ये देख लीजिए, नेगेटिव चार्ज जैसे भाग जाता है सीधे, वो समझ आ रही है बात? तो अगर ये भागेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे पोजीशन पे अपीयर होता है फिनॉक्साइड आयन में, इसका मतलब है कि अगर आप डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पे डालोगे, उससे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, बिकॉज द नेगेटिव चार्ज विल गेट मोर सरफेस एरिया फॉर द डीलोकलाइजेशन, व्हाइल एज दिस happens, this effect is not operative at what we say as the meta, only inductive effect operates in case of the meta। आप मुझे बताइए एक चीज,
अब अगर आप इन दो को कंबाइन करेंगे तो आपको ओवरऑल ऑर्डर क्या मिलेगा? ओवरऑल ऑर्डर मैं यहां पे निकालने की कोशिश करता हूं। ओवरऑल ऑर्डर में आपको मिलता है, ये था हमारे पास, मैं इसको ऐसे करता हूं, ठीक है, मैं इसको O ग्रेटर देन M ग्रेटर देन P। मुझे बताओ दोनों में से स्ट्रॉन्गर इफेक्ट कौन है, या रेजोनेंस है कि इंडक्टिव इफेक्ट है? इसी केस में जब आप NO2 की बात करोगे तो ऑफ कोर्स रेजोनेंस इफेक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब यह है अब O और P की हमें इक्वालिटी सॉल्व करनी है। इसका मतलब है कि यहां पे देख लीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट विल हेल्प यू। इन दोनों को कंबाइन कीजिए, दोनों को कंबाइन करने के बाद आपको पता चलता है कि ऑर्थो शुड बी ग्रेटर देन, para should be greater than meta. This should have been the overall order for the nitrophenol. लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि असल में ऑर्डर जो है, that is experimental order is like this. It is para greater than ortho greater than meta. Now there is a reversal. ये यहां जाता है, ये यहां जाता है। अब इसकी वजह क्या है? देखिए इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि अगर आपके एसिड में कोई इफेक्ट ऑपरेट होता है, ओरिजिनल एसिड में इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, यानी हमारे पास एक तो कंजुगेट बेस हो गया, वो बनना है, लेकिन अगर आपके एसिड में कोई इफेक्ट ऑपरेट होता है, उस एसिड में इफेक्ट ऑपरेट होने की वजह से, यानी अगर आपका एसिड स्टेबलाइज करता है, उसकी वजह से H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी कम हो जाती है। वो समझ आ रही है बात? अगर हमारे पास इट शुड हैव बीन द ऑर्डर शुड हैव बीन ऑर्थो ग्रेटर देन मेटा, सॉरी पैरा ग्रेटर देन मेटा, बट द ऑर्डर इज पैरा ग्रेटर देन ऑर्थो। व्हाई देयर हैज बीन रिवर्सल? ठीक है, ये इक्वालिटी यहां पे चेंज क्यों हो रही है? वो समझ आ रही है बात? यानी हमारे पास ऑर्डर इज रिटेन बाय रेजोनेंस इफेक्ट, यानी या तो ऑर्थो को होना चाहिए या पैरा को होना चाहिए था, लेकिन अब होना चाहिए था पैरा ऑर्थो को, लेकिन है कौन? पैरा। सो देयर इज अनदर इफेक्ट व्हिच ऑपरेट्स इन केस ऑफ सर्टेन सबस्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो सबस्टिट्यूटेड फिनॉल्स। उसमें क्या होता है कि उनके ओरिजिनल एसिड में एक इफेक्ट ऑपरेट होता है व्हिच इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसकी वजह से देखिए क्या होता है, ये किसी किसी ऑर्थो सबस्टिट्यूएंट में प्रेजेंट होता है, और इसकी वजह से देखिए क्या होगा, ऑरिजिनल एसिड, ठीक है, ऑरिजिनल एसिड में जो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव एक्चुअली फंस रहा है, यानी ये ब्लॉक हो रहा है इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट मींस इट स्टेबलाइजेस एसिडिक ऑरिजिनल एसिड ऑफ व्हाट वी से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब उसकी वजह से जब ब्लॉकेज हो रहा है, H पॉजिटिव नहीं निकल रहा है, तो उसकी वजह से जो आपका कंजुगेट बेस होगा वो कम बनेगा, और अगर कम बनेगा उसके बाद स्टेबिलिटी फैक्टर्स ऑपरेट करेंगे। लेकिन ये इफेक्ट एब्सेंट है पैरा के केस में। पैरा के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन नॉट ऑपरेट, एंड विद द रिजल्ट दैट्स अ मोर स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, बिकॉज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में जो ओरिजिनल एसिड है उसमें एक एडिशनल इफेक्ट ऑपरेट होता है विच इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसकी वजह से H पॉजिटिव यहां एनर्जी डिक्रीज कर जाती है, एनर्जी लीज आउट होती है, H पॉजिटिव स्टेबलाइज होता है, उसकी वजह से इसका कम टेंडेंसी रहता है टू गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स व्हाट वी से एज अ कंजुगेट बेस। एंड if an original acid is stabilized by some factor, it always decreases the acidic character, and the extent of the decrease is actually present by the effect, that ki effect kitna stronger hoga, that will be decided by this. So what we have inferred is that due to intramolecular hydrogen bonding, in case of orthonitrophenol, it's weaker acid as compared to the para, as compared to what? Para. So the overall acidic order is para greater than ortho greater than meta nitrophenol in case of phenolic acids. Abrar?